Hi students, welcome back to the course on design of machine elements, and today we will start design against fluctuating load. And in the end of this lecture you will be able to understand that how we will design our components when it is subjected to fluctuating loads. And as you know that previously we were discussing about designing the components against a static load, and static load is that load where the magnitude or direction is not changing with respect to time. एक ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज करता है with respect to time. And while we were designing the components with respect to static load, we were using elementary equations, and there are three elementary equations. Sigma t will be equal to P by A. Okay, sigma B is equal to mby upon I, and shear stress is mt into R, you can say, or T. Both are the same things. So as you know that our machine component is subjected to either tensile force, okay, bending force or shear force. So correspondingly the stresses are developed in the material. अगर टेंसाइल स्ट्रेस हमारे किसी कंपोनेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा उसमें, एंड हाउ टू फाइंड आउट द टेंसाइल स्ट्रेस, इट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. और बेंडिंग फोर्स अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर लगता है देन we have a bending equation, and from the bending equation we will be able to find out the bending stress, that is mby upon I, where mb is the bending moment, y is the distance from the neutral axis, I is the mass moment of inertia, as you know already. And if the component is subjected to shear force then shear stresses will be developed, and उसको अगर निकालने के लिए आप इन्हें फॉर्मूला यूज करना है mt r upon j. So where mt is the just like यहाँ बेंडिंग मोमेंट था तो यहाँ पे टॉर्जनल मोमेंट हो जाएगा, यहाँ पे r is the radius from the neutral axis, and j is what, polar moment of inertia. So these three equations are called as elementary equations, और इन्हीं elementary equations का हमने यूज किया था static लोड में जब हम किसी कंपोनेंट को डिजाइन कर रहे थे. ओके, क्लियरली. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन से वी वर यूजिंग सम अजम्पशंस, और वो अजम्पशंस क्या थी? द अजम्पशंस आर दैट देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी इन द कंपोनेंट में कोई भी डिसकंटिन्यूटी हम क्या कर रहे थे? कंसिडर नहीं कर रहे थे. बट एज यू नो दैट इन प्रैक्टिस डिसकंटिन्यूटीज एंड अब्रप्ट चेंजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर अनअवॉइडेबल बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, और वो अनअवॉइडेबल है, उनको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग. इट मीन्स द अजम्पशंस ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस कैन नॉट बी मेड अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, एंड एलिमेंट्री इक्वेशंस डू नॉट गिव द करेक्ट रिजल्ट्स. हमें रिजल्ट तो मिले वहाँ पे, बट दोज रिजल्ट्स वर नॉट करेक्ट, बिकॉज अब जो हम बात कर रहे हैं कि वो अब्रप्ट चेंजेस जो हैं उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ऑयल होल्स, हमें कई बार हमें मैक्सिमम टाइम ऑयल होल्स चाहिए होते हैं लुब्रिकेशन के लिए. ग्रूव्स, कीवेज, स्प्लाइंस, स्क्रू थ्रेड्स, आपको शोल्डर्स, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंडेटरी हैं, ये आपको रखनी ही पड़ेंगी किसी भी मशीन कंपोनेंट में, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन. So whatever the assumptions which we were taking in the design against static load, the results which we were getting were not exact or correct. Okay, so in order to understand this, let me take an example that we have a plate over here, और उस प्लेट में हमने एक होल कर दिया है, एंड यू आर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स एट द एंड्स पे आपने क्या करा? एक टेंसाइल फोर्स लगा दी. सपोज ये हमारे पास लेट अस से दिस इज द प्लेट, और उस प्लेट के ऊपर आपने क्या करा? टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो आप, और इसके सेंटर में एक आपने होल कर रखा है. नाउ you will observe that near the discontinuity, यहाँ पे discontinuity है कहाँ पे, पहले आपको ये समझना है. Discontinuity is when there is a circle over here. So यहाँ पे discontinuity है इसके क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि सर्कल बना दिया आपने. तो जब आप इन स्ट्रेसेस को विजुअलाइज करेंगे then you will observe that the stresses are less, okay, at this particular point, means away from the hole, और नियर द होल द स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम. जो स्ट्रेसेस है वो क्या है हमारे पास? मैक्सिमम है नियर द होल. तो अब हम हाउ वी वर कैलकुलेटिंग
द सिग्मा टी वी विल कैलकुलेटिंग विद दिस फॉर्मूला पी बाई ए, और इसको सपोज दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या था उस टाइम, this was the magnitude which we were getting of sigma t. But we have observed that there are the stresses near the discontinuity which are more in magnitude like this. आप देखिए यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड फर्क है ना इसमें, तो उस स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा मैक्स। ओके, बट हमने जो डिज़ाइन किया था कंपोनेंट्स को, वो डिज़ाइन किया था हमने इस सिग्मा टी के बेस पे। इट मीन्स हमने कम स्ट्रेस के लिए कंपोनेंट को डिज़ाइन कर लिया, बट द स्ट्रेसेस विच वर कमिंग वर मोर। जो स्ट्रेसेस हमारे पास आ रही थी एक्चुअल में वो क्या थी, वो ज़्यादा थी, लेकिन आपने स्ट्रेस कंपोनेंट को डिज़ाइन किया फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ सिग्मा टी। सो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ये जो स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इंक्रीज हुआ है। सो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, दैट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द कंपोनेंट एंड अब्रप्ट चेंजेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सिंपल से वर्ड्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जो डिसकंटिन्यूटी होंगी किसी भी कंपोनेंट में, उस डिसकंटिन्यूटी के अराउंड और उसकी विसिनिटी में आप बोलो जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब वहाँ से हमारे कंपोनेंट के टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। देयर आर द चांसेस दैट आवर मटेरियल विल गेट फेल नियर द डिसकंटिन्यूटी, और वो किसकी वजह से, वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हुआ। एंड नाउ वी विल define our discontinuity, that what is stress concentration, हम stress concentration को define करेंगे अब। So definitely it is necessary in order to modify the value of the stress which we have obtained, and how we will modify that stress by taking the effect of stress concentration। तो अब हमें सिग्मा टी जो मैंने लिया था, हमें सिग्मा टी ना लेके अब सिग्मा मैक्सिमम लेना है, और वो सिग्मा मैक्सिमम बेसिकली क्या होगा, वो होगा जिसमें हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को इंक्लूड करेंगे अब। सो लेट मी जस्ट डिफाइन द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हेयर विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के टी। तो के टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सो द रेशियो ऑफ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस क्या लिया हमने, सिग्मा मैक्सिमम। आपने देखा ना, जो हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आया था वो सिग्मा मैक्सिमम है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी टू द नॉमिनल स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय एलिमेंट्री इक्वेशंस फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो that Kt will be sigma maximum divided by sigma nominal, और सिग्मा नॉमिनल कैसे निकालना है आपको, सिग्मा नॉमिनल आपका आएगा एलिमेंट्री इक्वेशन से, ठीक है ना। जो एलिमेंट्री इक्वेशंस हमारे पास, उन एलिमेंट्री इक्वेशंस से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉमिनल आ जाएगा। अब आप यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम निकाल सकते हो, दैट सिग्मा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू Kt इंटू सिग्मा नॉमिनल। सिग्मा नॉमिनल को हमारे बुक में हमने नोटेशन यूज़ कर रखा है सिग्मा ओ। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे अब, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला नाउ वी विल डिटरमाइन आवर सिग्मा मैक्सिमम, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू आई है, 1 सेकेंड, ये देखिए सिग्मा मैक्स अब हमारे पास कैसे आएगा, के टी इंटू सिग्मा नॉमिनल। सिग्मा नॉमिनल आपको पता ही है, हमारे पास 3 एलिमेंट्री इक्वेशंस हैं एज यू नो। आप इसमें पी बाई ए से भी कर सकते हो, एम पी वाई अपॉन आई से भी कर सकते हो, और एम टी आर अपॉन जे भी कह सकते हो। सो इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट अवर के टी विल बी इक्वल टू सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा नॉमिनल, और टाउ मैक्स अपॉन टाउ नॉमिनल भी कह सकते हो आप। तो नाउ यहाँ पे देखिए, अब सिग्मा नॉमिनल तो एफ बाई ए से आ गया हमारे पास, ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। नाउ एरिया बेसिकली अब कैसे आना है, सपोज हमने यहाँ पे एक जो एग्जांपल कंसिडर किया है, दिस एग्जांपल, सो एरिया विल बी अराउंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अगर इसको हम लोग एक्स सेक्शन लेते हैं, तो इस सेक्शन के अलोंग जो हमारा एरिया आएगा वो क्या बनेगा, डेफिनेटली एरिया बन जाएगा हमारे पास, दैट इसकी टोटल जो, सपोज इसकी विड्थ हमने W ले ली, द विड्थ ऑफ दिस प्लेट की जो विड्थ है वो W ले ली, तो W में से माइनस करना पड़ेगा आपको ये होल, जिसका डायमीटर आपके पास D है,
लेट अस से d इज द डायमीटर ऑफ दिस होल, सो w माइनस d इंटू इसकी प्लेट की थिकनेस भी दोगे कुछ ना कुछ। अगर आप इसको इस तरह से कर दो, इस तरह से अगर आप इसको बना दो तो इसकी थिकनेस भी तो आएगी, तो थिकनेस, सो दिस विल बी द एरिया नाउ, और वो ये एरिया होगा जो क्रिटिकल एरिया होगा। ओके, यहाँ से टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपने वही एरिया निकालना है हमेशा, दैट इज मिनिमम एरिया, बिकॉज यू नो दैट सिग्मा टी और जो बेसिकली जो स्ट्रेस और एरिया है उसका रिलेशन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इफ एरिया इज मिनिमम स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। सो जहाँ पे भी एरिया कम होगा वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगी और वहाँ से फेलियर अकर होगा हमारा। तो ये आपने अब एरिया जो निकाला है वो W माइनस टी इंटू टी वहाँ पे इस तरह से आ गई है। Now this is stress concentration. I hope this is clear. Now next question comes that what are the causes of stress concentration? Stress concentration जो है वो किन किन वजह से होता है? So first point is variation in material properties. As you know, the material which we will use for designing our components, that may be non-homogeneous in nature. It may have cavities, air holes, internal cracks or some foreign inclusions. ये सब इसमें क्या है, ये डिफेक्ट्स हैं, वो डिफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे मटेरियल में। सो उस वजह से जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस आ सकती हैं, सेम मटेरियल में भी वेरिएशंस आ सकती हैं। सो फर्स्ट रीज़न तो ये है हमारे पास। सेकंड रीज़न विल बी लोड एप्लीकेशंस। फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट और ओवर स्मॉल एरिया। अगर फोर्सेस हमारे किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं या स्मॉल एरिया के ऊपर एक्ट कर रही हैं, देन डेफिनेटली प्रेशर विल बी मोर, बिकॉज प्रेशर भी क्या है हमारे पास, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल गियर्स एप्लीकेशंस में, बियरिंग्स में, कैम्स एंड फॉलोवर्स में। एंड मोर ओवर लोड एप्लीकेशन हमने अभी तक जो यूज़ करते हैं वो स्टैटिक कंडीशन यूज़ कर रहे थे, बट इन एक्चुअल द फोर्सेज में बी फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। सो दिस इज द सेकेंड रीजन दैट ड्यू टू द लोड एप्लीकेशन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में डेवलप। अब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन, जो आपका सेक्शन है, अभी आपने देखा कि हमारे पास ये अगर इस तरह का सेक्शन एक प्लेट है तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसमें होल आ गया देन इट इज़ अब्रप्ट चेंज। या फिर अगर आपका कुछ इस तरह से है, सपोज ये प्लेट है जिसमें आपका एक शोल्डर फिलेट आ गया, तो ये अब्रप्ट चेंज यहाँ पे आ गया इसके क्रॉस सेक्शन में। सो अब्रप्ट चेंज इन द क्रॉस सेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। डिसकंटिन्यूटीज इन द कंपोनेंट इज द अनदर कॉज, जस्ट लाइक कीवेज, स्लॉट्स, ऑयल होल्स और स्प्लाइंस की मैंने बात करी। तो ये डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, इनकी वजह से भी हमारे कंपोनेंट में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डेवलप होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट देयर आर मैनी रीजंस दैट वी कांट नेग्लेक्ट, ओके, एंड इफ वी वांट टू design our components then we need to include all these components, okay, and in order to include these factors, हम stress concentration factor को include करते हैं और उसकी वजह से फिर हम सिग्मा मैक्स निकालते हैं, दैट इज KT इंटू सिग्मा नॉमिनल। ओके, नाउ दिस इज द methods to determine the stress concentration factors. There are two methods by which we will calculate stress concentration factor. First is analysis based on theory of elasticity. Okay, so theory of elasticity basically use होता है हमारे पास simple machine components के लिए. If the components are simple geometric shapes, then we will use theory of elasticity approach by some mathematical equations. And the second approach is photoelasticity method. तो अभी जो मैंने आपको पीछे दिखाया था होल, जस्ट लाइक होल दिखाया था, और उस होल में हमारे पास क्या था, जो लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस था वो क्या हो गया था, हमारे पास ज़्यादा हो गया था, एज यू कैन सी। इसका ये हमने क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं हम आपको, नियर द डिसकंटिन्यूटी, वन सेकेंड, नियर द डिसकंटिन्यूटी द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस विल बी मोर। फिर यहाँ पे कम है हमारे पास और वो स्ट्रेसेस जो हैं वो इस तरह से वेरी कर रही हैं। तो ये जो स्ट्रेसेस का जो आपने जो जो विजुअलाइज किया है कि मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये हम करते हैं बाय फोटो इलास्टिसिटी मेथड। ओके, एंड फोटो इलास्टिसिटी मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया दैट इट्स अ विजुअल मेथड इन विच फुल फील्ड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फोटो इलास्टिक मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। ओके, so let me just explain you that what photoelasticity method is. इसमें हम क्या करते हैं, in this method
एन आइडेंटिकल मॉडल, जो भी कंपोनेंट को आपने डिज़ाइन करना है उसका एक आइडेंटिकल मॉडल बनाते हो आप, ओके, विच इज़ मेड ऑफ इपॉक्सी रेजिन मटेरियल। ये एक पॉलीमर है बेसिकली विच इज़ लिक्विड इन स्टेट, और उसमें हम कुछ हार्डनर डालते हैं और एग्जैक्टली हम रेप्लिका बनाते हैं एक्चुअल कंपोनेंट का। जिस तरह का एक्चुअल कंपोनेंट है उसी तरह का हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, बट उसका मटेरियल क्या होता है, इपॉक्सी होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। फिर हम क्या करते हैं उसमें, दैट मॉडल इज प्लेस्ड इन अ सर्कुलर पोलरिस्कोप एंड लोडेड एट द एजेस। एक सर्कुलर पोलरिस्कोप में हम उस मॉडल को रखते हैं और उसको एंड पे क्या करते हैं, उसमें लोड लगाते हैं। लोड लगाने पे तो जो हमारा मटेरियल है, जो हमने बात करी कि इपॉक्सी रेजिन है, उसमें से लाइट पास कर सकती हैं। फिर इसको पोलरिस्कोप की हेल्प से लाइट पास करवाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस को हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं। This is the way in order to visualize the stresses, that how stresses are flowing in a material. So this is the photoelasticity method. In order to understand this, let me show you a video also. 1 second. Yeah, this is the model जो मैंने बनाया है with epoxy resin. ये मॉडल हम बनाएंगे विद इपॉक्सी रेजिन विच इज़ अ पॉलीमर इन लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे हम लाइट सोर्स पास कराएंगे विद सेंटर पोलरिस्कोप। दिस इज पोलराइजर, ये वे प्लेट है। अब जैसे ही इसमें से मटेरियल में से ये लाइट पास करेगी तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेसेस जो हमें दिखना शुरू हो जाएंगी। और ये कुछ है, इसमें क्या कर रखा है हमने, दीज आर सम पिक्चर्स की किस तरह सबको स्ट्रेसेस जो हैं वो दिखेंगी इस मटेरियल में विद डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस। ये हमारे पास ये कंपोनेंट हैं, ये ऑटोमोबाइल की कनेक्टिंग रॉड है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हैं, स्ट्रेसेस को हम लोग देख सकते हैं इन आवर मटेरियल। ओके, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग लेट मी शो यू अ वीडियो दैट हाउ फोटो इलास्टिसिटी अप्रोच विल वर्क actually. Okay, so just watch this video carefully. Here you can see ये मटेरियल है हमारे पास जो इपॉक्सी रेजिन का बना हुआ है, और ये हमारा मटेरियल हमने क्या करा है, लोडेड कर दिया है। एंड ये इसके एंड्स हैं, इसमें इसको हमने एंड से स्टैटिकली लोडेड कर दिया है। इसमें फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, और जैसे फोर्स लगा रहे हो तो हम लाइट पास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर पोलरिस्कोप। एंड ये आपको दिख रहा है कि हाउ द स्ट्रेसेस आर फ्लोइंग इन दिस मटेरियल, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये होल कर रखा है हमने, और ये हमारा क्या है, अब्रप्ट चेंज है हमारे स्कोर सेक्शन में। यहाँ पे एक नॉच काटा हुआ, एक नॉच यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। सी, सो ये एक तरीका होता है बेसिकली इन order to see the distribution of the stresses in the material. But remember this thing, this is not the actual material, this is the replica of the actual material. ये actual material का replica है जो कि epoxy resin का बनाया गया है. Okay, so I hope now it is clear to you that how we are getting these distribution of stresses with the help of photoelasticity approach. So मैंने आपको बताया कि stress concentration को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं. वन इज़ द फोटो इलास्टिसिटी अप्रोच एंड अनदर वन इज़ दैट इज़ थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी अप्रोच बाय मैथमेटिकल मॉडलिंग अप्रोच. और एक और तरीका है नाउ अ डेज हम लोग FEA फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को निकालते हैं. सो लेट मी गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. ओके, सो ये हमने डिस्कस करा कि फोटो इलास्टिसिटी हम लोग किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं. और एनालिसिस बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी ये हमारा यूज होता है फॉर द सिंपल ज्योमेट्रिक शेप मशीन एलिमेंट्स. नाउ सी,
अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है. इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फॉर सम सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू using the theory of elasticity. So a flat plate with an elliptical hole. Suppose let us take a flat hole with an elliptical shape and subjected to a tensile force sigma t as shown in the figure below. So it can be proved using the theory of elasticity. ये फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, theory of elasticity. सेकेंड मेथड मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में. So it can be proved using theory of elasticity that the theoretical stress concentration factor at the edges of the hole is given by kt 1 plus 2 a divided by b. यहाँ पे a बेसिकली क्या है, सेम मेजर एक्सिस है एलिप्स की एंड दिस इज माइनर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस बोल सकते हो उसको, और ये सेमी माइनर एक्सिस b. नाउ अब आप देखिए that in order to find out the kt, so kt for this particular shape, suppose we are taking a condition over here that b, if b is approaches to 0, अगर हम b को 0 कर दें then what will become kt. So 1 plus 2a, तो हमारे पास कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा डिवाइड बाय ये हमने 0 कर दिया सपोज, तो a by 0 दैट इज 1 by 0, तो 1 by 0 तो हमारा इन्फिनिटी हो गया. इट मीन्स इन्फिनिटी में कुछ ऐड करें तो इन्फिनिटी होगा. इट मीन्स स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम इनफाइनाइट. अगर इस तरह की कंडीशन आती है दैट यू नो द होल इज जस्ट लाइक दैट, इस तरह का होल है, अगर इस तरह का होल है और आपने यहाँ पे फोर्स लगा रखी हैं इसके, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे पास इनफाइनाइट हो जाएंगे. मतलब मटेरियल हमारा एकदम से ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हो जाएंगे वहाँ पे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, ये हमने एक मॉडल बना रखा है इसी तरह का. देखिए ये हमने एक छोटा सा एलिप्स लिया है, सपोज इसमें कुछ ना कुछ हमने बी रखा हुआ है. सो अगर आप इसमें अब टेंसाइल फोर्स ऐसे लगाओगे आप इसके एंड पे, तो अगर देखिए मैं अगर जरा सी भी टेंसाइल फोर्स आपको दिख रहा होगा, आई गेस इट इज़ क्लियर टू यू लाइक दिस. तो अगर मैं इसके ऊपर छोटी सी भी फोर्स लगाऊंगा, देखिए थोड़ी सी फोर्स लगाया मैंने, क्या हो गया, ब्रेक हो गया. वाई? बिकॉज द स्ट्रेसेस आर इनफाइनाइट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. तो जो क्रैक है हमारा, उस क्रैक के अगर हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो वो एकदम से टूट जाएगा. ओके अगर मैं इस क्रैक के, सपोज दिस इज द क्रैक नाउ, और इस क्रैक के मैं परपेंडिकुलर फोर्स न लगा के इसके पैरेलल लगा रहा हूँ, देखिए मैं, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो. मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन नहीं ब्रेक हो रहा है. इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे पास, इनफाइनाइट नहीं है, इट हैज सम मैग्नीट्यूड. सो इसी तरह का हम केस ले सकते हैं कि सपोज अगर आप ये जो ए और बी हैं ये दोनों बराबर हो गए, और इस तरह का केस बन गया कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये होल है और हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर होल हमने ले लिया यहाँ पे. सो व्हाट विल बिकम केटी नाउ, यहाँ पे छोटा सा होल ले लिया, यहाँ पे ए और बी बराबर हो गए सपोज, तो यहाँ पे केटी विल बिकम दैट इज 1 plus 2, ए एंड बी आर इक्वल, सो ए डिवाइड बाई ए कर दीजिए, या फिर कैंसिल हो गया, तो 1 plus 2 विल बी 3. तो यहाँ पे kt की वैल्यू 3 हो जाएगी फॉर स्मॉल सर्कुलर होल. सपोज इफ वी हैव ए स्मॉल सर्कुलर होल इन अ प्लेट देन kt विल बिकम 3. ओके ये कई बार पूछ भी लिया सकता है कि फॉर स्मॉल सर्कुलर होल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ kt, तो kt इज 3. सो these are the two ways basically in order to find out the stress concentration factor. बट हम लोग मैक्सिमम जो यूज़ करेंगे वो फोटो इलास्टिसिटी अप्रोच के थ्रू हम इसको मेथड को यूज़ करेंगे, और उसके लिए भी आपको करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी चार्ट्स हैं, जो कि R.E. Peterson वाज द नेम ऑफ द पर्सन who has experimented on different geometric shapes and find out the magnitude of the kt. So let me just show you the graphs. ये हमारा हो चुका है. ओके ये ग्राफ है, देखिए these are the different graphs with the help of which we will find out the stress concentration factor. Okay, जैसे you can see this is a rectangular plate with transverse hole. ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसमें एक ट्रांसवर्स होल है. ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें जो लोडिंग है वो परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, उसके अलोंग द एक्सिस ऑफ द होल लगेगा, ठीक है ना लोड, दैट इज वाई इट इज ट्रांसवर्स. तो ये एक प्लेट हो गया विद ट्रांसवर्स होल, ये एक प्लेट हो गया विद सम थिकनेस, ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक राउंड शाफ्ट हो गया विद शोल्डर फिलेट, ये हमारा
राउंड शाफ्ट विद शोल्डर फिलेट इन टेंशन, क्योंकि टेंसाइल फोर्सेज लगेंगे. दिस इज आल्सो राउंड शाफ्ट विद शोल्डर फिलेट बट इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग. वैसे ही ट्विस्टिंग भी हो सकता है, ये तो बेंडिंग हो गया ना, वैसे ट्विस्टिंग भी हो सकता है. सो दीज आर सम ज्योमेट्रिक शेप्स जिनका हम यूज़ करेंगे व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. सो इस तरह से हम केटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. जो जैसे केटी आ गया हमारे पास, तो केटी के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा मैक्सिमम निकाल सकते हैं. सिग्मा नॉमिनल तो हमारे पास आ ही जाएगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री इक्वेशन. चलिए ये हमारा हो चुका है. नाउ लेट मी डिस्कस दिस. When and where to consider the stress concentration factor? So KT, depends upon the material of the component. As you know, our component is brittle or ductile. So under static load, ductile material are not affected by stress concentration. Okay, under static load, if load is static, so ductile material are not affected by stress concentration, because when the stress at the discontinuity reaches the yield point or plastic deformation, it results in redistribution of stresses. Stresses क्या रहते हैं मेरे पास, redistribute हो जाती हैं. So that's why under static conditions, ductile materials are not affected by stress concentration. While effect of KT is more severe in case of brittle material due to their inability to plastic deformation. You know that there is no any plastic deformation in the brittle material. Directly ultimate point आता है हमारे पास. So when the load is fluctuating in nature, the magnitude of the endurance strength of the ductile material is greatly reduced due to stress concentration. ये आपको ध्यान रखना है कि जब लोड हमारा fluctuating, that is whose magnitude and direction is changing with respect to time, the magnitude of the endurance strength of the ductile material is greatly reduced due to stress concentration, and this accounts for the stress concentration factors. ये हम डिस्कस करेंगे in the coming lectures. Now the last the topic is that reduction of stress concentration effects. How you will reduce stress concentration? अब हमें ये तो पता लग गया कि हमारे पास stress concentration होता है और वो बेसिकली discontinuities में प्रेजेंट होता है और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. Now there are some reasons or there are some points with which we will avoid or we will reduce the stress concentration effect. How? See, these are some methods. As you know, it is not possible to avoid discontinuities or abrupt changes, as you know. So there are some methods with which we will reduce the stress concentration by using multiple notches, removal of undesired material, drilling of additional holes. These are some ways with which we will reduce the stress concentration. So let me explain this with the help of diagrams. देखिए, इन फर्स्ट डायग्राम ये आपका एक सपोज प्लेट है, उसमें एक नॉच काटी हुई है. ये जो आपको दिखा रखा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस है. यू कैन सी इजीली कि ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है. सो इस पर्टिकुलर जगह से हमारा कंपोनेंट ब्रेक होने के चांसेस हैं. एज यू नो, अगर हमने इसकी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस नहीं करा तो यहाँ से टूट सकता है. तो उसके डिफरेंट वेज हैं, बाय मल्टीपल नॉचेस. ऐसी नॉचेस आप और काट दो, मल्टीपल नॉचेस. देखिए, एक ही मल्टीपल नॉच ये काट दिया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये. ऐसे आपने नीचे भी काट दिए. अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आप पहले इस तरह की थी, अब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह से आ गई. स्टिल देयर इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, बट वी कैन से वी हैव रिड्यूस्ड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हियर समहाउ. अब ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये भी है कि आप एडिशनल होल्स भी कर सकते हो. नॉचेस नहीं काटे, आपने होल कर दिए. होल अब होल करा तभी स्ट्रेस आपका क्या हो गया, will be like this. और अब दिस इज़ द थर्ड अप्रोच, दैट इज़ रिमूवल ऑफ मटेरियल. आपने कुछ मटेरियल रिमूव कर दिया, यहाँ से कुछ मटेरियल रिमूव कर दीजिए. आप जब मटेरियल रिमूव कर दोगे आप, ओके, जैसे आपने यहाँ पे करा हुआ है, मटेरियल रिमूव कर दिया तो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गई. सो दीज आर सम मेथड्स विद विच वी विल रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. और ये भी है रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन. देखिए, ये एक अब्रप्ट चेंज है जस्ट लाइक दिस. तो इसमें आप कैसे कर सकते हो रिड्यूस? इसको आप फिलेट कर सकते हो, इस शार्प एज को फिलेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है. तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को कम कर सकते हो. दिस इज़ द अनदर अप्रोच. अंडरकट कर सकते हो आप, नॉच काट सकते हो. सो दीज आर सम वेज इन ऑर्डर टू, यू कैन से, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है. और आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि व्हाट इज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. दैट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, एज यू नो, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस नियर द डिस्कंटिन्यूटी डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस. नॉमिनल स्ट्रेस को हम सिग्मा नॉमिनल से डिनोट करते हैं.
और फिर हमारे पास यहाँ से सिग्मा मैक्सिमम आ जाएगा, एंड सिग्मा मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, के टी इंटू सिग्मा नॉमिनल। सिग्मा नॉमिनल आपका कहाँ से आएगा, विद द एलिमेंट्री इक्वेशंस, एंड के टी हमारा कहाँ से आएगा, के टी हमारे पास आएगा ग्राफ से। और वो ग्राफ कहाँ से आए हैं, बेसिकली वो आए हैं फोटो इलास्टिसिटी अप्रोच से। ऑलरेडी हमारे पास ग्राफ हैं, उन ग्राफ की हेल्प से हम लोग के टी निकालेंगे, और के टी अगर आपके पास नोन है तो सिग्मा मैक्स हमारे पास निकल जाएगा। सो I hope this is clear to you, and in the next lecture I will explain you that how we will solve the question on this particular topic, that is design against fluctuating load, when we will consider the stress concentration. So thank you so much.